आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल।
प्यारे बच्चे और सारी मम्मियाँ एंड पापा, thank you so much. All the volunteers, Gyan Singh sir ji, thank you so much for joining us. It's a privilege for us. And I just want to start the contest today. तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमारी नई नई चीज़ें जानेंगे. And Prashi, दूसरा start. Good morning everyone. I'm Prashi and I'm Trisha. And together we are your hosts for today's super creative and super exciting art contest. We're so happy to see all the bright faces here. Students, parents, teachers and our wonderful guests. But wait, Rashi, are we here to just look at art? Of course not. We're here to make it, enjoy it and feel it. And guess what? Today's special theme is something we both absolutely love. Zentangle! So, what exactly is Zentangle? Zentangle is an easy, fun and relaxing way to create beautiful patterns. It's like doodling, but not exactly doodling. But you draw patterns with a calm mind and a happy heart. Wow! And the best part is, you don't need to be an artist to do Zentangle. You just need a pen, a paper, a pencil and a paper smudger or earbud and a sprinkle of imagination.
ideas and trust us. Once you start, you can't stop. So, whether you're drawing spirals, dots, waves, or zigzags, every stroke becomes a part of your story. And now, let's welcome the amazing people who made this day possible. A big round of applause for our respected guests, Shri Gyan Singh Sir and Preeti Jain Ma'am. हम क्या बातें कर रहे हैं? ओके, आई कैन सी सम हैंड्स अप, वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं आज एक नए आर्ट का जिसका नाम है ज़ेन टैंगल। ओके, ज़ेन जो होता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी। आप सब प्रेयर करते हो, भगवान जी को याद करते हो, तो कुछ तो लगता है ना अच्छा अच्छा सा मन में, वो होता है पॉजिटिव एनर्जी। तो ज़ेन और टैंगल का मतलब क्या होता है? पैटर्न्स। आप देखो उस पर्दे पर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, अपने कपड़े पर देखो कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, इसको बोलते हैं टैंगल। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी जो भगवान जी का आशीर्वाद है ना उसको और टैंगल्स को मिला देते हैं तो जो ड्राइंग बनती है उसका नाम है ज़ेन टैंगल। तो एक नई चीज़ है जिसमें हमें कोई कलर पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक शीट चाहिए होता है, पेपर है सबके पास, एक पेन चाहिए होता है, एक पेंसिल चाहिए होता है और एक पेपर स्मजर होता है जिससे हम शेडिंग करते हैं ना, कुछ लोगों को पता होगा ना, हम वो यूज़ करते हैं। नो इरेजर एट ऑल। तो ये ऐसी ड्राइंग है जिसमें हम इरेजर कभी भी यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो हमारे जो बच्चे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो, ये 3 साल से ये लोग ये बना रहे हैं, ठीक है? तो ये देखो आप ड्राइंग्स, इसमें किसी में भी रबर यूज़ नहीं हुआ। आप सोच के देखो, हम बिना इरेजर यूज़ किए भी ड्राइंग बना सकते हैं। आज हम वो एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, एक्साइटेड एवरीबडी? वेरी गुड, राइट। एंड वेलकम प्रीति मैम, थैंक यू सो मच एंड विल जस्ट कंटिन्यू दिस। And to all the parents joining us, thank you for encouraging your kids to express themselves through art. And of course, the real stars of today are super talented participants. Let the creativity begin! Happy Zen January, everyone! Hi everyone, we welcome all of you. I'm delighted to introduce our chief guest, Shri Gyan Singh Ji, who has warmly accepted our invitation to join us today. Thanks a lot, sir. Shri Gyan Singh Ji has retired from Air Force. He is the RWA President, Media Enclave, Vaishali, Ghaziabad. Sir is the Director President of Rashtriya Sainik Sanstha, Ghaziabad and the National Vice President of CORWA. Shri Singh Ji, life is dedicated towards servicing human needs. He is the man of strong human values and we are highly inspired by him. Sir, it is a pleasure having you here. I would request Sir and other eminent guests to declare the art competition open. We will go through each and every art table in the room and we will see our kids performing. I would request all the parents to be seated from the time till the exhibition starts, till the exhibition is seen by our chief guest. Request to parents to go in the another room. Once the contest Once starts. the contest is started. Parents, you will be seeing the competition immediately after the art contest gets over. Our kids needs our word of appreciation. We would also encourage to buy their artwork to encourage them. Thank you for your patience. So you can declare the art exhibition open. जय हिंद। क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें? लेट अस स्टार्ट। जय हिंद। ठीक है, सर ये हमारे बच्चों ने बनाए हुए हैं आर्ट। हमारे बच्चे कहाँ हैं? कम? अधिकतर लोगों ने 3 साल हमारे साथ कंप्लीट किया है सर। आर्ट को जैसे हमने बताया ये इमेजिनेटिव आर्ट है। आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और फिर आप बनाना शुरू करते हैं। हम इसमें इरेजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो ये बच्चे भी मेडिटेशन के साथ साथ ये वाला आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 साल से। तो आप देखिएगा ये अलग अलग वेरिएशन है सारे। ये प्राची ने बनाया है, ये देखिए। गुड, एक्सेलेंट। हमारे कुछ आर्ट वर्क वहाँ पर भी लगा रखा है हमने।
आरना सादिका ने भी बना रखे हैं काफ़ी सारे आर्ट। ये युक्ति का है, ये युक्ति किसका है? अच्छा कृष्णा का ही है। कितना अच्छा है, और ये माँ लिखा गया है। तो ये मदर्स डे था, तो इसलिए हमने एम्फसाइज किया इस चीज़ में। जी, हम लोग सभी माँ से प्यार करते हैं, माँ सर्वोपरि है। उन्होंने भी माँ बना रखा है यहाँ पर। और सर ये हमारा छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा देव, अभी साल भर हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुआ, और ये इसके हाथ में कलर पे मूर्ति है। ये देखिए इन्होंने ये बनाया, मुझे पता है आपको पसंद है। सारे जहाँ पे अच्छा है तो उस काम आ रहा है ना। चलिए ये आपके साथ में तस्वीर खींचना है। और ये देखिए इससे एनलाइटनमेंट भी लिखा है। इसमें अगर देखिएगा तो एनलाइटनमेंट ऑल इन वन है ना। एक्सेलेंट। सादिका बटरफ्लाई को अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों सर अभी आधे घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर आने लेट्स आगे मैं राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके मैं आता हूँ। Excuse me. Okay, so we have a very amazing guest today, Miss Preeti Jain. She is the founder of KPAMAS, teacher loved by all her students, and who is passionate about taking her students and doing their best. So let's welcome Miss Preeti. Come on, round of applause for her. I request Preeti ma'am to please join us and declare the art competition open. Good morning everyone. Let's start. Have fun with your drawing. I request you to come and see the art exhibition, and please be seated on the next room, and we will let you know about the next step very soon. So I request all the parents to go to the other room because we'll start the contest now. And also I welcome Pramila ma'am from Milind Academy. इनकी वजह से हम आज यहाँ पर contest कर पा रहे हैं. So she is from Milind school herself, the teacher here. And she is a PT ma'am, she is a chief guest ma'am. Gyan Singh sir has just left अभी थोड़ी देर में आएंगे. और बाकी हम लोग सारे parents. नहीं contest अभी शुरू कर रहे हैं, अभी exhibition इस तरीके. हम लोगों ने कर लिया था एज वाइज. उससे पहले सुनिए, आपके पास एक A4 शीट है, सभी के पास एक पेंसिल है और एक पेन है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो भी थीम दिया जाएगा, ठीक है, आप भी सुनो बच्चों, और उसके बाद उसमें पेंसिल से पहले आप ड्रॉ कीजिएगा. उसके बाद आप इसको आउट कोई भी रिपीटेड पैटर्न्स बनाने में दिखाती हूँ आपको. कोई भी पैटर्न भरना है. कैसे? या तो मैं, देखिए ध्यान से सब लोग, या तो मैं इसके अंदर ऐसे सर्कल बनाऊंगी, 1
2, 3। ये सर्कल्स एक दूसरे से टच होंगे लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। कहीं पे हो सकता है एक बड़ा सर्कल बना दिया हमने, फिर एक छोटा बना दिया, ऐसे करके सर्कल्स बनाएंगे। या फिर और क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर कुछ लाइंस बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे लाइंस हो गया, या आपको सीधी लाइंस रखनी है तो सीधी लाइंस रखेंगे। हम आज जो ड्राइंग करेंगे ना वो हम शेप तो बनाएंगे, मेन उसमें है, बट उसके अंदर जो पैटर्न होगा बहुत सिंपल होगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। कोई भी पैटर्न बनाना है, पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक कोई भी चीज़ को रिपीट करते रहना, ठीक है। तो हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बटरफ्लाई है, ओके। एक ऐसे बटरफ्लाई ऐसे होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी रफ बता रही हूँ। हाँ, फिर आपका मान लो एक ऐसे और ऐसे, यहाँ पे कैसे आएगी, ये देखो ऐसे और ऐसे, और इसकी दो इधर और ये इसकी आईज होगी मान लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके विंग्स में, एक विंग्स में हमें मान लो आप सर्कल सर्कल बनना चाह रहे हो, एक में आप क्या करना चाह रहे हो, लाइनिंग्स करना चाह रहे हो। हमें उस बटरफ्लाई को ब्यूटीफुल बनाना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कुछ पैटर्न्स बता दे रही हूँ। देखिए जैसे एक पैटर्न होता है सिंपल, ये क्या है, कौन सा शेप है ये, स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल है ना ये, तो हो सकता है हम किसी के अंदर सिर्फ स्पाइरल बनना चाहे, एक बड़ा सा स्पाइरल, फिर छोटे छोटे स्पाइरल, ओके। स्पाइरल हो गया। एक आप सब चेस बोर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं चेस बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल इसके बच्चे बैठ जाओ, देखो ये देखो, ये हमने लाइंस बनाई, वर्टिकल लाइंस। फिर हमें क्या करना है, स्लीपिंग लाइंस, और उसके बाद क्या करना है, हमें एक को कलर करना है, फिर छोड़ देना, फिर एक को कलर करना है, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें कलर किया तो ये छोड़ देंगे हम, चेस बोर्ड तो ऐसे ही होता है, तो हम इसको फिर कलर करेंगे, फिर ये छोड़ देंगे। फिर इसके देखो यहाँ पे इस लाइन को देखो, यहाँ कलर है, यहाँ खाली है, यहाँ कलर है, यहाँ खाली है, यहाँ कलर है, यहाँ खाली है। तो हमें इस तरीके से भरना है। अंडरस्टूड। कोई भी डाउट होगा हम लोग है यहाँ पे, आप आराम से एक को बनाओ। तो आज यहाँ वाले आप सबको बटरफ्लाई बनाने आता है, हाँ, तो आप लोग बटरफ्लाई बनाओगे शीट के ऊपर। 1 बना लेना, 2 बना लेना, पैटर्न्स भरते हैं, ठीक है सब लोग, ओके। और यहाँ जो बच्चे हैं, हम क्या बना रहे हैं आज, बोलिए, द गार्डन ऑफ आवर लाइफ, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स, और उसमें लीफ भी आ सकते हैं, बटरफ्लाइज भी फ्लाई कर सकती है, चिड़िया भी हो सकती है। आप ये सोचो, तो आप ये आउटलाइन करोगे सबको, लेकिन जो हमारा गार्डन बनेगा ना उसके अंदर पैटर्न्स बनना है। हमें आज कलर बिल्कुल यूज नहीं करना है। क्या है कि आप ना शेडिंग कर सकते हो, दिख नहीं पा रहा ना, से आउटलाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं ये इसको पेंसिल को सीधा नहीं रख के थोड़ा सा सुला दूंगी, और उसको ना इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पेंसिल करेंगे, बस इतना सा। और उसके बाद एक पेपर स्मजर है सबके पास, वाइट कलर का है ना, एक पेपर का बना हुआ, उसको लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, पेपर स्मजर से इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करेंगे, और ये मिक्स करके इतना छोड़ देंगे। तो आपको पता है क्या होगा, जादू हो जाएगा। वो 3D इम्पैक्ट लेता है, वो ऐसा लगेगा जैसे वो ऐसे फूला हुआ है, बिल्कुल 3D लगेगा। शेडिंग में भी हेल्प यू, क्योंकि मैं समझ रही हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज पहली बार शेडिंग कर रहे होंगे, तो हम बता देंगे आपको, बहुत वॉलंटियर है, आप लोग हेल्प कर देंगे। बट आपकी आउटलाइनिंग खुद होगी, आपकी क्रिएटिविटी खुद होगी। गार्डन कैसे होना चाहिए, गार्डन तो वैसे बाहर भी है, देखा सबने आज। और कुछ हिंट में दे सकती हूँ, बैठे बैठे आपके आसपास सारी फोटोज लगी, आप उठोगे नहीं सीट से, लेकिन जिसको जो दिख सकता है फ्लावर्स कॉपी कर सकते हो, है ना। देखो मैंने चीटिंग सा थोड़ा सा बता दिया आपको, ओके। हैप्पी एवरीबॉडी, थैंक यू। 11 पता है आपको, ये एंजल का नंबर होता है, मतलब आसपास हमारी एंजल्स भी हैं, फेरीज हैं यहाँ पे बहुत सारी, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग एट 11 और हम लोग एंड करेंगे 12, चलो 12 पे एंड करते हैं, डन। चलिए अब आप ओपन कीजिए सब लोग। आप
सीधे बैठो। ओके, सब सीधे बैठ के 1 मिनट सब कुछ छोड़ दीजिए जो भी कर रहे हैं सारे लोग। चलिए लेट्स डू वन थिंग। आरना बैठ जाओ, ठीक है। मिष्टू ध्यान से सुनो, सीधे बैठो सभी लोग और अपने हाथों को ऐसे करो, डेस्क के ऊपर रखो इस तरीके से। हाँ सभी लोग चलो। अब जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनोगे बस, ठीक है। आइज क्लोज करो सब लोग, सीधे बैठो। वेरी गुड, एवरीबडी आइज क्लोज, एवरीबडी। ऑसम, थैंक यू। अब आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हो, देखो आप ब्रीदिंग कर रहे हो और अभी आप ब्रीद आउट कर रहे हो। आपको बस उसको ऑब्जर्व करना है, हमें अपनी सांसों को चेंज नहीं करना है। आइज क्लोज करो सब लोग। आप जो सांस अभी ले रहे हो उसको देखो ध्यान से, आंख बंद करके, और फिर सांस छोड़ रहे हो। आप ब्रीद इन कर रहे हो, आप ब्रीद आउट कर रहे हो, आप ब्रीद इन कर रहे हो, आप ब्रीद आउट कर रहे हो, आप ब्रीद इन कर रहे हो, आप ब्रीद आउट कर रहे हो। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने भगवान जी से कनेक्ट करते हैं। वो भगवान जिसने ये यूनिवर्स बनाया है, और इसलिए जब उनकी ताकत आपको फील होती है तो आपके अंदर भी वो ताकत आ जाती है, वही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और फिर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी फोकस बढ़ती है। इसलिए हम लोग अब धीरे से अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पर लेके जाएंगे, छाती पर। आप अपने हाथ पे रखिए, एक हाथ को अपने चेस्ट पे रखिए, शाबाश। अपने हार्ट बीट को फील कीजिए और धीरे से बोलिए थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय माइंड, माय बॉडी एंड माय सोल फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने हाथों को एक दूसरे से रब कीजिए, जैसे आप हाथों को गर्म करते हैं। अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 और धीरे से अपनी आंखें खोलिए विद अ ब्रॉड स्माइल। कैसा लगा? कैसा लगा बताइए? फ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश लगा? हाँ, रिलैक्सिंग लगा थोड़ा सा? चलिए आप धमाकेदार कॉन्टेस्ट हो। ओके, चलिए हम जितने समय से शुरू करेंगे उससे मैं आपको 60 मिनट दूंगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपने ऊपर भरोसा करके स्टार्ट कीजिए। खुशी सबसे बड़ी चीज देखो, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बनाओ, जो भी है वो सही है। हम इसमें कोई ऐसा नहीं रखेंगे कि आपका गलत है और आपका सही है। जेंटैंगल में कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होता है, इसलिए हम कभी भी इरेजर यूज नहीं करते। और आपके पास भी इरेजर नहीं है तो हम पेंसिल से बना रहे हैं। धीमे धीमे सोच के बनाओ। वेरी गुड, बनाइए। चलिए सब लोग awesome, वेरी गुड। मन शांत करके धीरे धीरे बनाइए। आप फ्लावर में तो वो सब कर सकते हैं। कोई डाउट है? कुछ भी बना दिया है कि बटरफ्लाई बनाना है? नहीं नहीं, अच्छा एक के पास एक ही वॉलंटियर रहेगा, इतने सारे नहीं रहेंगे।
अगर किसी को उसमें से देखना है तो नहीं जरूरत है तो बस देख के रख देना। कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तभी भी ड्राइंग हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना?
बैठ जाओ बेटा, सब आराम से बना। वही बैठो थोड़ी देर ना, क्योंकि कॉन्टेस्ट ऊपर तो होने दो। नाम लिख के आपके पीछे अभी आराम से, और जो लोग हैं आराम से कीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं है। We can't wait to see the magic your hand will create. Let your pens dance and your heart smile. And while our artists are working on their masterpieces, let's share the fun Centennial fact. Did you know? The lights are farming. It was from small parents and girls, anxious or just need a break. Pick up a pen and Centennial. बातें नहीं, शांत जाओ, ताकि जो लोग ड्राइंग कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो। Oh yes, it looked like a wobbly opera, but it made me feel so आंटी आप बोल रही हैं इसको अभी भी नहीं आती। Mine looked like a flying butterfly, but hey, it was mine, and that's the best part of Rectangle. Every design is beautiful because it's yours, and every parent tells a story. ये हमारी प्रिंसिपल मैम है। मैम ये मैम ये वाली मैम है कि मैं बोल रही हूँ ये क्या एरिया की है। इन्हें बोल देंगे आपके ओके, आवाज नहीं, क्योंकि आप आवाज देंगी ना तो बना रहे हो डिस्टर्ब होगा।
पीछे है पर ड्राइंग के ऊपर भी करो। आना पीछे जैसा बनाया सबका नाम पीछे से। पीछे से लो, अक्षता का है। बस चेक करना है कि सफेद शीट के पीछे नाम है। यूपी जिसका हो गया ले लो। आराम से, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना है दूसरों को, ठीक है? ध्यान से। एवरीबॉडी हैज गिवन देयर बेस्ट, इट्स ओके। आराम से। शाबाश, वेरी गुड। अभी रखो। यहाँ पे रखो। किस तरह से रहेंगे? अच्छा ठीक है। पीछे से। अपना नाम बोलो, अपना गोल बनाओ, अचीव करो और अपनी एज भी बताओ। Hello, my name is Amrita. My favorite food is chicken roll, and I'm 9 years old. My name is Tanishka Yaswal. Today I'm going to speak 2 lines on myself. My name is Tanishka Yaswal. Today I'm going to speak 2 lines on myself. अबे फट जा जा अबे बस शिवम कृष्ण दामोदरम नरनारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं हम मीरा के जैसे खिलाते नहीं। थैंक यू। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि उस समय में मना किया था बच्चों को आने हर 2 मिनट पे आ जाए। कुछ भी काम से कोई भी बहाने से बच्चे आ रहे थे जानने के लिए कि किसका किसका नाम आने वाला है। एक्साइटेड है सारे? हाँ? वो नहीं आई, आवाज ठीक से नहीं आई मुझे। बस बस, वेरी नाइस वेरी नाइस। पहले ये बताइए प्रोग्राम कैसा लगा आज का? ड्राइंग करना कैसा लगा? अच्छा लगा। आज मन शांत होकर ड्राइंग किया, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बनाना है अच्छे से। सबने किया ऐसे? अच्छा लगा? वेरी नाइस, गुड। ओके, बाय द टाइम पेरेंट्स आर कमिंग, आ जाओ। Time to celebrate our winners. But remember, everyone who picked up the pen today is already a winner in our eyes. Let me call Prabhat Uncle, our beloved PM, And Devan Uncle to announce the names of the students, those artworks that qualified the contest today. भाई मेरे को माइक की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या बोलना है ये बता दो। सबको पता है एक 8 साल के नीचे वाले मतलब 5 to 7, 4 to 7 वाले वहाँ बैठे थे, ठीक है? जिसमें टोटल कितने थे? 5 to 6 किड्स थे और बाकी सारे 8+ इधर बैठे थे, ठीक है? बट जब हमने सारा आर्ट वर्क देखा, वी वाज दैट क्यों इतने सरप्राइज थे, क्योंकि आप सब में से कितनी लोगों ने पहली बार जेंटैंगल बनाया? हाथ उठाइए जरा देखें। पहली बार जेंटैंगल के लिए ट्राई किया है। ब्यूटीफुल। आपने नए नए पैटर्न्स बनाए, आपका शेडिंग वर्क, आपका पूरा जो कवरेज था दैट इज ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले हम अपने छोटे बच्चों से शुरू करेंगे, ठीक है? सभी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और सभी को गिफ्ट है, सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स है। हाउएवर हमें थोड़े से बेस्ट चूज करने थे और हमने कोई रैंकिंग नहीं रखी है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। पूरे लॉट में से जो भी हमें अच्छे लगे, ज़्यादा थोड़ा प्रेजेंटेबल था, जिसने जेंटैंगल के पैटर्न्स को कवर किया था, जिन्होंने शेडिंग अच्छी सी करी थी और जिनका कंप्लीट वर्क था, ये 4 चीज़ें देखकर हम लोगों ने वो किया। और कुछ एक नए कैटेगरीज भी बनानी पड़ी क्योंकि कुछ लोगों का आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा था, ठीक है? तो सबसे पहले जूनियर्स में we'll take the names, the top 3 और top 3 भी नहीं, बेस्ट परफॉर्मर्स मैं कहूँगी, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम किया। इनका नाम पहले मुझे बताओ कौन कौन है जो जूनियर्स में था? रेज
5? 5. ओके. ओके, वेरी गुड. किसको लगता है कि वो फर्स्ट आया होगा? अच्छा भाई, देखो ऐसा है, हर आदमी तो जीतेगा नहीं रेस. जो अच्छा किसने कोई शेड कर दिया होगा, उसका नाम है कृषिका दीप. बहुत बढ़िया. उसके आओ यहाँ पे आओ बेटा. मेरे को आप किसको लग रहा है कि मैं होगा? अब 4 बजे मैं नाम बोल रहा हूँ यहाँ पे. वो नाम एन से शुरू होता है. एन. किसी ने बोला निवान? अरे शाबाश, आ जाओ भाई निवान. महाराज निवान जी बहुत बढ़िया, शाबाश. इधर बोर्ड की मारो तुम्हारी. अरे शाबाश. हाँ, अरे बहुत तो सारा टी से शुरू होता है. वो टी फॉर टैंगो. ऐ शाबाश, आ जाओ तनिष्का. यार वेरी गुड. और किसी ने ये कहा था कि बिना कलर के तो मैं ड्राइंग ही नहीं कर पाऊंगी. और हाँ, और सब बाकी जो लोग थे उनके लिए भी क्लास चाहिए. यस. ओके, देखो सब दिल थाम के बैठे, ऐसे बैठे सारे के सारे. सो बताया, हमने ये देखा कि पहले आपको जेंटांगल आता था या नहीं आता था. तो जिन्होंने न्यू कमर्स है उनको हमने प्रेफरेंस दिया है अभी. और जिसने पूरी थीम को कवर किया, जो थीम था इनका दैट वाज गार्डन. ओके, उनका जब अपना गार्डन होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, फ्लावर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. और थोड़ी बहुत तो मैंने चीटिंग भी करवाई है 30 मिनट्स के बाद, है ना. सभी को ओपन में एकदम खुले में रिलैक्स होकर, ठीक है. चीटिंग इन दी सेंस उन्होंने बुक रेफर किया, बुक को देखा और फिर कुछ आइडियाज देके वापस बंद करके फिर से किया. कुछ बच्चों ने, सबने नहीं किया ये सिर्फ. ठीक है. तो थैंक यू सो मच, बिकॉज आप सबकी ड्राइंग अमेजिंग थी. हमें सबसे ज़्यादा टाइम यही डिसाइड करने को लगा कि हम उसमें से टॉप 3 कौन सा चूज करें. ओके, सो वंस अगेन दीवान अभी नाम लेंगे जो टॉप 3 है. प्रीति मैम प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कम हियर. एंड प्रीति मैम से हम लोग आपको अवार्ड दिलाएंगे. ओके, और कोई रैंकिंग नहीं है, याद रखना. नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट्स ओनली बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट्स ऑल. ओके, एनीबॉडी हु क्वालिफाइज दैट. फर्स्ट नेम इज परिणीता. वेट. सही बात है. सेकंड इज अथर्व बख्शी. He's so excited. Yay! Congratulations, Gauri. Okay. अब क्योंकि बहुत सारी ड्राइंग थी तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस देख लेते थी. बट कुछ और तो बनता ही नहीं. कुछ और लोग अभी भी सोच रहे हो कि मायूस होने की जरूरत नहीं है. एवरी ड्राइंग वाज ब्यूटीफुल.
तो इसलिए हमने 2 और एज अ कंसोलेशन प्राइज चूज किया है, क्योंकि उनकी शेडिंग वर्क वाज अमेजिंग और उन्होंने जो पैटर्न्स मैंने बताए वो डाला है, इतनी अच्छी से इसको 3D में कवर किया है, तो इसलिए हमने 2 और लोगों को चूज किया है। और इसमें पहला नाम है तनुज। Congratulations, तनुज। इधर चलिए, ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। देखना अमेजिंग था इनफैक्ट, तो हम नहीं रोक पाए अपने आप को बिल्कुल। ऑसम। एंड देयर इज वन ब्यूटीफुल गर्ल ओवर हियर जिसको ज़ेंटांगे पहले से पता था, एंड दैट्स व्हाई you know she has done amazingly good work because she has been a student of ours also। पर हमने क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग बनी थी, काफ़ी समय के बाद उसने बनाया है, तो हमने उसे कंसोलेशन प्राइज दिया। रिति प्लीज। Congratulations रिति। उसके बाद एक ऐसी ड्राइंग थी जो अमेजिंग था, अमेजिंग, सुपर सुपर अमेजिंग, लेकिन हमने उनको बेस्ट परफॉर्मर में क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो हमारे एज कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, राइट? लेकिन उनकी इतनी अच्छी ड्राइंग है। एक ऐसी लड़की जो सबसे पहले आई, पूरे बेंचेस खाली थी, वो सबसे लास्ट में जाके बैठ गई कोने में बस, एंड शी वाज वेटिंग फॉर द आर्ट कॉन्टेस्ट टू स्टार्ट एंड शी डिड phenomenally well। So Akshita, Joel, please come। Oh wow, Akshita, small you। So इसकी फिनिशिंग इतनी अमेजिंग है, एंड आपको ज़ेंटांगे नहीं पता, राइट? So she was amazing, amazing। इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 13 इयर्स में ओनली 1 पार्टिसिपेंट, अदरवाइज शी इट इज द बेस्ट, राइट? सॉरी, गले की हालत खराब हो गई। अच्छा सा प्यारा सा अपने आप को लव दीजिए, खूब सारा। आपको पता है अपने आप को हक कैसे करते हैं? किसको पता? बहुत अच्छा काम किया आज। कौन एवरीवन, एवरीवन कौन बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हियर्स अ सर्टिफिकेट फॉर ईच वन ऑफ यू। हम लोग नाम लेंगे, आप यहाँ पे आके बस अच्छी ओके। आर्या, आर्या प्लीज कम। शांभवी, ऋषिका, दीप, सक्षम कुमार पांडे, अनीता, करवीर, गणेशका जायसवाल, शाबाश। अभी का बहुत अच्छा लग रहा है, कंप्लीट ही मेरे को दिखाना है। तनुज। ये सब चलता है यार, मेरे को तो किसी नहीं मिला। भाई आर्ट देखनी है मेरे को इसकी। होल्ड करो, लुक स्ट्रेट इन द लेंस। क्या हो गया? अरे फाइनली इसको बहुत ढूंढ रहे थे भाई, गर्वित नहीं है भाई। करवीर गया है शायद ये बच्चा। बिफोर क्लोजिंग द सेरेमनी, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ 3 साल से हैं, क्योंकि हमारी कंपनी को 3 साल हो गया है,
तो हमने सोचा क्यों ना उनको माइलस्टोन अवार्ड दिया जाए, जैसे हमें कंपनीज में मिलती है। तो एक छोटा सा आइडिया आया था। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच आज के वॉलंटियरिंग के लिए। आप लोगों की मदद से बहुत अच्छी चीज़ मिल हुआ, एवरी वन ऑफ देम, थैंक यू सो मच। आर्नव, एक बार सारे लोग आ जाओ इधर, काउंट कर दो। देव माया, देव जल्दी आओ, कांशा, आर्यू। हाँ, और हमारे क्लास में अनवी भी है जो अभी गुवाहाटी ट्रैवल कर रही है, शी इज नॉट हियर। Shamsi, you can come forward and collect. हाँ, जब उसका हो जाएगा मैं कमेंट करेंगे, ओके? So this is our small Soul Seedlings family and I really say thank you from the bottom of my heart because आज जो हम हैं आप सबों की वजह से हैं। So thank you so much and आप भी यहाँ साइड में खड़े हो जाओ। जब इनका ट्रांसफर हुआ तब उन्होंने सोल सीडलिंग छोड़ा, जिस दिन आए उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच। Congratulations. तालियां भी करवा थोड़ी। इसके लिए तो देव एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। जय मैम से मेडिटेशन एंड मेडिटेटेड माइंड, ये मेरी छोटी सी पेंटिंग। छोटा सा पेन स्टैंड जिसमें सोल सीडलिंग्स लिखा है। हमने बहुत सारा सोचा, कुछ भी क्रिएटिव रखना चाहते थे हर चीज़ को। एक छोटा सा टोपाई एंड आई एम सो हैप्पी कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। तो दिस इज अनदर गिफ्ट पेंटिंग फ्रॉम माय साइड, मेडिटेटिव माइंड ऑफ मिलिंद अकेडमी। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। संडे का दिन रिलैक्स हो सकता था और थोड़ा बहुत जो भी ऊपर नीचे हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या तो हम अभी स्नैक्स बॉक्स यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। उनका बॉक्स मेरे पास से जाने के was very good. Experience was very good. Reviews? हाँ दे सकती हूँ। हाँ बोलिए। मैं निशा और ये मेरा बेटा देव, हम दोनों यहाँ पे आकर बहुत खुश हैं और मेरे बेटे को हर वीक अपने क्लास का इंतज़ार रहता है और वो श्वेता के साथ बहुत 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 खुश है जंटंगन क्लास करके। थैंक यू। हाँ स्टार्ट। हाय, सोल सीडलिंग विंग्स का जो ये रहा काफ़ी बेटर था बच्चों के हिसाब से। उनको थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला और आई होप कि हम आगे थोड़ा मतलब कनेक्ट होके रहेंगे, क्या नाम है, लोगों से। कैसा लगा आपको कंपटीशन? कैसा लगा? प्रोवाइड हुआ भैया? क्यों आए थे यहाँ? आर्ट करने के लिए। आपने क्या जीता है? ट्रॉफी। किस चीज़ के लिए? आर्ट के लिए। बिकॉज इज नॉट लाइक आर्ट बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड ही इज विनिंग समथिंग फ्रॉम हियर। इट्स अ good surprise to see he is able to draw as a good painting. Okay. Thanks Soul Seedling to get the things out of the children. I'm just surprised he is doing well in the art. Thank you. So मेरी डॉटर को ऑलमोस्ट 3 years हो गए हैं सोल सीडलिंग्स के साथ और श्वेता के साथ हमारा एसोसिएशन जब से हुआ है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन माय डॉटर शनाया एंड नॉट ओनली फॉर शनाया। आई थिंक जो लर्निंग्स होती हैं बीच बीच में जो वर्कशॉप्स होती हैं हम अटेंड करते हैं, देयर इज़ अ लॉट दैट वी लर्न, देयर इज़ अ लॉट दैट वी कंटिन्यू टू लर्न ईच डे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू सोल सीडलिंग्स. May you grow and flourish. It was a group. Hi, start. Hi, I'm Nishant Nautiyal, and it was a very inspiring moment today for all the children and for all the parents.
बिकॉज इसमें एक कल्मिनेशन पॉइंट आता है when children achieve something and they get rewarded, and I think these things should continue to the later stages also. Thank you so much. चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।